السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلطان فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویژن۔ ناظرین، پچھلا ایک ہم نے پروگرام لگایا اور اس کے بعد ہم خود بھی شاکڈ ہو گئے کہ اتنا پازیٹیو رسپانس، اور آپ لوگ جو ہے وہ بار بار ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جناب میاں ابوذر شاد صاحب کو دوبارہ بلایا جائے اور ہم ان سے مزید سننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی لگتا ہے اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہمارے دکھ درد کی جو عکاسی ہے یا جو ترجمانی ہے جس لحاظ سے وہ کرتے ہیں، شاید ہم نے جن کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں کرتے۔ تو آپ کی بھرپور فرمائش پر میاں ابوذر شاد صاحب دوبارہ ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ میاں صاحب ونس اگین بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ تکلیف کی جو ہے وہ آپ آئے، آپ کی نوازش ہے، آپ ہمیشہ جو ہے وہ شفقت فرماتے ہیں۔ تو سر اچھا، بہت پچھلے پروگرام میں نے بڑے اوصاف بتائے تو نیچے کمنٹس آئے کہ جناب آپ نے ایک جو میاں صاحب کا وصف ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی میاں صاحب اچھی شاعری سے بڑا شغف رکھتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، تو میاں صاحب سے آپ کے پاس آئے اور آپ نے میاں صاحب سے کچھ سنا بھی نہیں، آپ بڑے بے ذوق آدمی ہیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین کا وہ ہم گلا شکوہ دور کر دیں کہ جی میاں صاحب کچھ عطا ہو۔ بہت شکریہ جی۔ پہلے میں آپ کے پہلے پروگرام کو جو لوگوں نے مجھے محبت دی ہے اس لیے میں دوبارہ آج حاضر ہوا ہوں، اور آپ کی فرمائش پہ اور ناظرین کی محبت کی وجہ سے ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ اے شمع تجھ پہ یہ رات باری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے سر۔ میاں صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت شعر سنایا۔ اس شعر پر جو ہے میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہوں گا، نقدی فوری طور پر۔ بڑی مہربانی۔ یہ ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سعید الوی صاحب، بڑی ان مہربانی۔ کی کتاب ہے اور اچھی شاعری سے شغف ہے آپ کا، تو میں یہ کتاب آپ کو ضرور پیش کروں گا، یہ ضرور پڑھیں، اور ناظرین سے بھی جو ہے جو اچھی شاعری پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور یہ پڑھیں۔ ناظرین، یہ سعید الوی صاحب کی کتاب مجھے مل گئی ہے ایک شعر پہ، اس کا مطلب اگر نظم کہہ دی تو پھر تو یہ مجھے اپنا دل بھی دے دیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے سر۔ بہت شکریہ جی سعید الوی صاحب آپ کا۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، آج آپ سے کچھ اور بات جی، بات یہ کرنی ہے زندگی کیا ہے۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا ہے، پہلے وہ کہہ لینے دیجیے، پھر جو ہے وہ آپ اس سے جواب لیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر زندگی کا پوچھنا ہے تو بی بی حاجرہ سے پوچھیں، جنہوں نے جو ہے وہ زمزم نکالا اور اس کے بعد پھر جو ہے آج دنیا وہی پانی تلاش کرتے کرتے چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا کچھ سن تاس معاہدے پہ روشنی ڈالیں۔ پانی سے ذرا یہ بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہی تو ذرا سن تاس معاہدے پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ جی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو 7 چکر لگائے تھے وہ تو ہمارے مذہب کا ایک فریضہ بن گیا۔ اللہ نے بتایا کہ جس طرف اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو یاد کرو گے تو پانی کے بغیر دنیا کچھ نہیں۔ پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات۔ ناظرین، میں آج سنتاس معاہدہ جو 1960 کے اوپر بات کروں گا۔ اگلی جنگ سر پہ کھڑی ہے، دشمن یعنی کہ اسرائیل اور انڈیا ہر حال میں ہمارا پانی بند کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم تو چوروں میں چور کی سیاست پر چل رہے ہیں۔ میرے پیارے حکمرانوں، اپوزیشن لیڈروں، ہوش کرو، دشمن ایک ایک پانی کے قطرے کے لیے آپ کو رسوا کرنے کے چکروں میں ڈٹ چکا ہے۔ تھوڑی سی روشنی 1960 کے معاہدے کے مطابق راوی، بیاس اور ستلج یہ دریا ہم نے انڈیا کو دیے تھے، اور اس کے بدلے انڈس، جہلم اور چناب پاکستان کے حصے میں آئے تھے، مگر انڈیا نے اپریل 2025 کو اس طرح کھوتا کھو میں ڈال دیا۔ میں تو پریشان ہو گیا ہوں، تو میں وقت کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، ایک ایسا مشترکہ الائنس بنایا جائے جس میں تمام پارٹیاں شامل ہوں، جس میں سنتاس معاہدے کو زندہ کیا جائے۔ یہ تیری میری جنگ نہیں، یہ جنگ ہمیشہ توپ، ٹینک، میزائل، جہاز اور بارڈر پر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی جنگ پانی کے بہاؤ میں لڑی جاتی ہے، کبھی ڈیم کے ڈیزائن پہ، کبھی عالمی عدالت میں، کبھی کلائمیٹ پالیسی پہ، اور کبھی ایک ایسی خاموشی میں جس کی قیمت ہماری آنے والی نسلوں کو دینی پڑے گی۔ بھارت صرف بجلی بنا نہیں رہا بلکہ پاکستان کی شہرک پہ انگلی رکھ کے کھڑا ہے۔ سنتاس معاہدہ ایک کاغذ نہیں بلکہ یہ پاکستان کی زراعت، خوراک، صنعت، بجلی اور بقا کا مسئلہ ہے۔ پانی بھارت کی جاگیر نہیں،
और मुआहदे की अमानत है। दहशतगर्दी का नाम अदालत में साबित होता है, पानी रोक कर नहीं। अगर इंडिया या खुद ही जज और खुद ही वकील और खुद ही जलाद बन जाएगा, तो खुद ही मुद्दई बन जाएगा, तो फिर आलमी मुआहिदों का जनाजा निकल जाएगा। पानी कर गई मुझे कलंदर की ये बात। जंग हमेशा तोप, टैंक, मिसाइल, जहाज वो बॉर्डर पर नहीं होती। कभी कभी जंग पानी के बहाव में लड़ी जाती है, कभी डैम के डिजाइन पे, कभी आलमी अदालत में, कभी क्लाइमेट पॉलिसी पे, और कभी एक ऐसी खामोशी में जिसकी कीमत हमारी आने वाली नस्लों को देनी पड़ेगी। भारत सिर्फ बिजली बना नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की शहरक पर उंगली रख के खड़ा है। हम आज जज्बाती नारा नहीं लगाएंगे, आज हम फाइलें खोलेंगे, तारीखें खोलेंगे और पूछेंगे कि पाकिस्तान ने अपने हिस्से का पानी कैसे बचाना है। इंडस, झेलम, चनाब पाकिस्तान की जिंदगी है। ये मायदा कोई खराब नहीं था, दो मुल्कों के दरमियान पानी की तकसीम का कानूनी निजाम था। अगर इस्लाफ था तो रास्ता अदालत था, डैम नहीं जो इंडिया बना रहा है। मेरे प्यारे हुक्मरानों, 2040 में लाहौर में पानी के हालात के मामले में साउथ अफ्रीका जैसे होंगे। हम एक एक बूंद को तरस जाएंगे। हुक्मरानों और ऑपोजिशन लीडरों, फौरन सिंध ताश मुआहदे पर एक्शन ले लो, नहीं तो वक्त बातों में गुजर जाएगा। भारत डैम पे डैम बनाया जा रहा है और पाकिस्तान सिर्फ बयान दे रहा है। पाकिस्तान क्यों नहीं आलमी ताकतों को इसमें डाल रहा जी? क्यों नहीं यूएनओ में जा रहा जी? क्यों नहीं ट्रंप साहब से बात कर रहा जी? अगर पानी कम हुआ तो गंदम कम होगी, अगर गंदम कम होगी तो रोटी महंगी हो जाएगी, रोटी महंगी होगी तो अमन टूट जाएगा, फिर इंडिया को गोली चलाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो गुर्बत से बड़ा जुर्म और कोई नहीं। इसलिए सिंध ताश मुआहदे पर खामोशी एक बहुत बड़ा जुर्म है। हम इसके कत्ल में हैं। जब अंदर से गफलत, नाहली, काहली और कमजोरी होगी तो आर्गुमेंट इंडिया उसका फायदा उठाएगा। अच्छा सर, आपने बात की खामोशी की कि सिंध ताश मुआहदा है, इस पर खामोशी जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है। तो आखिर ये खामोशी कब तक कायम रहेगी? आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि पानी पर खामोशी आने वाली नस्लों से गद्दारी होगी। जंग भारत भी वक्त से भी और अपनी नाहली से भी है। मैं सिर्फ कहता हूँ कि बगैर सबूत के किसी शख्स को गद्दार कहना दुरुस्त नहीं, मगर कौमी सलामती में सवाल उठाना पूरी कौम का फर्ज है। जब पानी, गैस, आईपीपी, बिजली, ज़राअत, डैम, क्लाइमेट जैसे मसाइल नजर आ रहे हो तो इस पर कौमी यकजाती पाकिस्तानी होने का सबको मुजाहरा करना पड़ेगा। मैं इस वक्त कौम से कहना चाहता हूँ, कौम को नारों से नहीं, जुलूसों से नहीं, हड़तालों से नहीं, धरनों से नहीं, इस वक्त सिंध ताश मुआहदे को बचाने की जरूरत है। जो कौम पानी ज़खायर नहीं करती वो कौम सलाब में भी मरती है, खुशकसाली में भी मरती है, और जो कौम डैमों को सूबाई दुश्मनी बना देती वो कौम आने वाली नस्लों को प्यासा रखती है। करबला में क्या हुआ था जी? वहां पानी पीने के लिए लोग तरस गए थे, मगर शहादत को कबूल किया सिर्फ हक के लिए, और सिर्फ ये हक ये था कि पानी हमारा हक है और हमें सिंध ताश मुआहदे को जिंदा करके दिखाएंगे। पाकिस्तानियों जाग उठो, जाग जाओ। आखिर में याद रखना, जब मुल्क पानी खो देता है, फिर ज़राअत खो देता है, फिर सनत कमजोर हो जाती है, रोजगार खत्म हो जाता है, आजादी बुझने लगती है, और आजादी भी बुझते दीवे की तरह खत्म हो जाती है। ये वक्त खामोशी का नहीं, ये पानी की हिफाजत का है, और ये वक्त सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि पूरी कौम का इम्तिहान है। मेरे प्यारे हमवतनों, जागो अपने हक के लिए, और हक से हक लेके रहेंगे। जिस तरह ईरान ने साबित कर दिया इसराइल को, जिस तरह ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हक सच्चा होता है, और हम तो हक पे मर मिटने वाले हैं। मैं तमाम हुक्मरानों को कैदी नंबर 804 से भी अपील करता हूँ कि वो भी वहां बैठ के जेल में कौम से अपील करे कि पानी के मामले में एक हो जाओ। खान साहब, सुलह हदैबिया इसलिए हुई थी कि दुश्मन जब इक्वलिटी पे आ जाए तो फिर एक कदम पीछे होना कोई बुराई नहीं। मैं खान साहब आपसे गुजारिश करता हूँ कि फौरी तौर पे सिंध ताश मुआहदे पे
पीटीआई अपना मौकफ क्लियर करे और बताए कि हम पानी के मामले में पूरी कौम एक है, नहीं तो हम कमजोर हो जाएंगे और जब कमजोर हो जाते हैं तो दुश्मन भारी हो जाता है। वो ना हो कि फील्ड मार्शल की तरह ये कहना पड़े कि जिस दुनिया में पाकिस्तान नहीं होगा हम दुनिया मिटा देंगे। तो हमें इंडिया को ये मैसेज है मेरा कि फील्ड मार्शल साहब के अल्फाज याद रखना, ये काम आएंगे तुम्हारे। अगर हम मिट जाएंगे तो 56 इस्लामी मुमालिक फिर भी खड़े हैं, मगर हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा और हम हिंदुइज्म खत्म कर देंगे अगर तुमने हमारा पानी रोका। इन्हीं अल्फाज के साथ पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मियां साहब, भारत पहले ही बहुत डरा हुआ था। दुनिया समझ रही थी कि पाकिस्तान जो है वो इधर ईरान और इजराइल की सुलह करवाने लगा हुआ है। अब इंडिया को होश आया, वो कह रहे हैं ये तो असल में हमें मारने की तैयारियां कर रहे हैं और उधर जो है वो हमें आके लताड़ के रख देंगे सीडीएफ की क़यादत के अंदर। ऊपर से आज आपकी ललकार ने उनको मजीद डरा देना है। मुझे लगता है कि आज जो शाम को जो उनका पहले ही वो बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं ना, चीख रहे हैं, उसमें मुझे लगता है वो तकलीफ में आज मजीद इजाफा हो जा रहा है आपकी इसकी गुफ्तगू के बाद। देखिए जी, जब मैंने एक प्रोग्राम किया इंडिया पे कि इंडिया के 2.5 करोड़ लोग चूहे खाते हैं तो पूरा इंडिया हिल गया था। करोड़ों लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी। इंडिया में आज भी 2.5 करोड़ लोग चूहे खाते हैं, भूख की वजह से जी, गुर्बत की वजह से जी। मगर वो देख ले, दुनिया की 10 साल के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन रहा है। हम में भी यकजहती की जरूरत है, हमें भी कौमी राय की जरूरत है। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, मैं तमाम हुक्मरानों से अपील करता हूं, अगर तुम्हें पाकिस्तान से प्यार है तो तमाम डॉलर वापस ले आओ। 300 अरब डॉलर तुम हुक्मरानों का बाहर पड़ा है, ये यहीं से गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाला काम मत करें, ये पैसा वापस ले आए, इसी में बका है आपकी। पूरा यूरोप तकलीफ में है। एक टाइम की रोटी यूरोप में पता कितने की है? कम से कम 20,000 रुपए की एक टाइम की रोटी। सूरज गरूब हो रहा है यूरोप का और आप देख लेना चढ़ती दुनिया में इंशाअल्लाह पाकिस्तान का सूरज तुलू हुआ है, गरूब नहीं हुआ। हम उभरते सूरज की पहचान है, अभी हम उभरे हैं। कैद आजम से किसी ने पूछा कौम कितने साल में मुकम्मल होती है? कैद आजम ने फरमाया था 100 साल लगता है कौम को बनाने में, 78 साल हमने जाया कर दिए। यही फ्यूचर है। मेरी हुक्मरानों से अपील है, ये मांगे टांगे की सवारियां छोड़ दो, ये नवाजना छोड़ दो, ये मरूसी सियासत खत्म कर दो, ये जज इब्ने जज वाली स्टोरी खत्म कर दो। और मैं एक बात बता दूं, तुम्हारे यहां बच्चा पैदा हो वो वजीर आला बने, गरीब के घर का बच्चा वजीर आला ना बने, ये कहां का इंसाफ है? इसका जवाब चाहिए। इमरान खान को लोग क्यों पसंद करते हैं? उसने मरूसी सियासत को दफन कर दिया हुआ है। और मैं ये आपको बता दूं, अगर इमरान खान को आपने छोड़ दिया तो ये बात लिख ले दीवार पे, वो पूरी असेंबली की स्वीप कर देगा, 90% से ज्यादा सीटें ले जाएगा। इसलिए मैं हुक्मरानों आज भी कहता हूं, उतना तंग करो इमरान को जितना तुम बर्दाश्त कर सकोगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये यकजहती का टाइम है। एक दूसरे को ताकत मत दिखाएं, अपने मसल ना दिखाएं। मैंने वो दिन भी देखे जब मियां नवाज शरीफ को कहा था, उन्होंने फरमाया मुझे क्यों निकाला है? ओ भाई 3 दफा तू प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, फिर भी तुम्हें क्यों निकाला है? ये आपके वालिद साहब की जायदाद नहीं थी, ये जागीर आपकी नहीं है, ये शरीफ लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये प्यारा पाकिस्तान है, ये 26 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। आपकी बड़ी मेहरबानी, अपने दाएं बाएं रिश्तेदारियां छोड़ें। एक आजम खान ने पूरा पीटीआई को बर्बाद कर दिया था। सारे आजम खान ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपनी मर्जी के आईजी लगवाए थे, अपनी मर्जी के चीफ सेक्रेटरी लगवाए थे। मैं कहता हूं अभी भी वक्त है, एक टेबल पे बैठ जाओ और एक दूसरे के हक को मानो, नहीं तो मामला बहुत बढ़ जाएंगे। देखें, मुझे तो आप बहुत से डराते थे ना, तो डरा ले, मैं तो अकेला आता हूं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। मेरे ये प्रोग्राम आपको याद दिलाएंगे कि कोई एक पागल पैदा हुआ था जिसने हक के लिए मरना, शहादत कबूल करनी सीखी है।
तो मैं तो शहादत के लिए तैयार हूं, मगर मेरे ये प्रोग्राम दुनिया रोएगी। और ये वक्त भी याद रखना, मुझे मारने से अगर तुम्हारा मसला हल होता है, बताओ कहां आना है, मुझे मारो गोली। एक मेहरबानी करना, गोली फ्रंट से मारना, पीछे से ना मारना, क्योंकि शहादत अल्लाह के यहाँ जब जाऊंगा तो अल्लाह को ये तो बताऊंगा कि मैंने आपके हक के लिए करबला का वाक़या याद करना है। मुझे ना डराना, आप अपनी सफ़े दुरुस्त करो, एक ही सफ में खड़े हो जाओ। महमूद याद, ये है मुसलमानों की चाल। ये सूदी निजाम से आपका निजाम नहीं चल सकता। आपको मैं ये बता दूं, आप 1 अरब रुपया घंटे का सूद दे रहे हो और 80 करोड़ रुपया घंटे का एडवांस ले रहे हो। मेरी जुबान ना खुलवाएं, ये आपके बजट में सब कुछ लिखा हुआ है। कौमें इस तरह तरक्की नहीं करती। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां 47% बजट का सूद पे चला जाए। मेरी बातें अब असेंबली में भी लोग कह रहे हैं। सबसे मुश्किल बात यह है, इमरान खान कहता था एक तो ये पढ़ते नहीं, एक ये पढ़े लिखे नहीं, और एक पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। और खुदा के लिए मेरी बातों को असेंबलियों में कोड मत करें, पढ़ें। आपको तारीख याद कराएगी कि ये IPPs के वायदे, इस कौम के कातिलों को नंगा करो, इसका मीडिया ट्रायल करो, अरबों रुपए के इश्तिहार देते हो, IPPs की लिस्ट तो शाया करो। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि $100 अरब 4 साल में यूं ही चला है। नहीं कह रहा, खुदा के लिए इस कौम को माफ कर दे। कौमें इस तरह की, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मियां साहब बहुत शुक्रिया, और आपकी इन्हीं बातों की वजह से जो है ना तर्जमान अवाम का लक़ब जो है ना वो आपको मेरा ख्याल है देना चाहिए। और हकीकी मायनों में अगर इस वक्त कोई अवाम की तर्जमानी कर रहा है, और यही वजह है कि आपकी रेटिंग जो है वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा है। आपका जब वीडियो लगती है, आपका जब सोशल मीडिया पे क्लिप आता है, तो उनकी पूरे का पूरा नैरेटिव जो है वो तबाह होकर रह जाता है। इसीलिए शायद उनको आपसे परेशानी भी है। खैर, आज के प्रोग्राम में जो है वो आपने बहुत कुछ मियां साहब की ज़बानी सुना, और आपको हकीकतन फील हुआ होगा ये तो आपकी तर्जमानी हो रही है, ये तो आपकी ही बात हो रही है। मियां साहब को इंशाल्लाह तकलीफ देते रहेंगे, बार बार बुलाते रहेंगे, ताकि आपकी जो तर्जमानी का हक है वो अदा होता रहे। तो आज तक के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।